Zero over. Yeah. Sir, Please. I'm just saying. Sir, in the House, we are keen to discuss Indo-China issue. No. This issue was... I will give you a chance after Mr. After the list. I will give you Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar. Against the attitude of the government. They do not want discussion on Indo-China border for the future. Respected sir, China is occupying our land. it is a privilege that you have given me the opportunity to speak on an important issue. Sir, there is a 70 acres of land, vacant plot at land near Jogeshwari Railway Station East in my parliamentary constituency of 27 Mumbai Northwest. The proposal of new Jogeshwari terminus is very much useful and convenient of thousands of travelers between Andheri to Borivali, as well as it would release considerable traffic pressure on Mumbai Central and Bandra terminus. The necessary drawings and estimate of Rs 70 crores have already been submitted to the Railway Board in September 2019. The said proposal has not yet been sanctioned. The Ministry is requested through you to sanction the necessary fund of Rs 70 crores immediately upon accepting new Jogeshwari Terminus, Western Railway, Mumbai. Thank you, sir. Shri K. Muralidharan. India is a fund raised to provide support for people affected by natural and man-made disasters. The fund is also allotted to the people for the treatment like cancer, kidney transplantation, heart surgery, etc. The financial assistance from the fund is highly inadequate. Every member of parliament is allowed to recommend 36 cases for financial assistance out of PMNRY per year. It must be enhanced to 100 cases per year as the number of applicants increasing every year. Presently, the financial assistance from PMNRF is miserably delayed. It causes great difficulty to the helpless applicants. Many major hospitals are not yet empaneled under PMNRF. The maximum assistance sanction from the fund is only 3 lakhs per head. It is meant to meet rocketing medical expenses in India. The right to health is indirectly mentioned in Article 21 of the Constitution, and it has to be read with many of other provisions of the Indian Constitution. The right to health was the first articulated by the World Health Organization, that enjoyment of highest attainable stand of health in one of the fundamental rights of every human being. Hence, I submit the number of MPs' recommendation must be hiked to 100 per year. The maximum assistance from fund must be enhanced to 5 lakhs per applicant. Delay in processing the application and technical issues regarding remittance to the hospitals must inherit out. And more hospitals like MVR Cancer Center in Kozhikode must be empaneled under PMNRF. Thank you, sir. Yes, sir. Shri Kodikunal Suresh. Thank you, Chairman, sir. I am going to raise a very important issue regarding the repeated instance of provisions of the draconian SEFASI Act that has been excessively used to attach properties of defaulters open through unfair and inhuman procedure, leading to helpless debtors or even their children committing suicide due to harassment and humiliation by the bank's authorities. In Kerala state itself, numerous instances of debtors or even their children committing suicide due to harassment experienced in the process of attachment by banks are reported frequently. The suicide of Abhirami in Padaram, Shuranad,
Gram Panchayat in Kunnatur district in my parliamentary constituency, Kollam district, whose father had taken a loan from Kerala Bank, a scheduled cooperative bank. Is a sad and unfortunate incident where a young student whose father had paid the majority of his loan, but that did not stop the bank from placing a board in front of the house and publicly humiliating a family. Such old human and archaic practice must be stopped once and forever. The financial situation in Kerala has declined rapidly and innumerable Pravasi have lost their job and their loans are defaulted for no fault of their own. However, the SARFAESI Act does not consider the healthy repayment of loan by the debtor and will start attaching the property. Shyam Singh Yadav, BSP. Sir, I conclude. Yeah, please conclude. Sir, let me conclude. Declare the unfortunate person an enemy of the bank and economic offender, as some big fish who looted crores of rupees from banks and fled the nation. Sir, ruined cashew factories, the failed small-scale business, please conclude, the loanees who took loans meeting education expense their children, all are facing the sword of SARFAESI Act, where they will stand loose everything they earn, and the branded defaulters for full public. I therefore urge upon the government to use to intervene and amendment the SARFAESI. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे जिले जौनपुर में सड़कों की हालत बहुत खराब है और उस पर चलने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ऊंट की सवारी कर रहे हों। उसमें नौजवान के अलावा बूढ़े भी चलते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज भी चलती हैं, कभी उनके साथ हादसा भी हो जाता है। वैसे तो खराब सड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ सड़कों का नाम आपके समक्ष गिनाऊंगा और आपके माध्यम से यूपी सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि उसको अगर नई न बनवा सके तो कम से कम मरम्मत ही करवा दें। जैसे लोहिंदा से तेजी बाजार होते हुए पडरी तक, लाला बाजार से छबीलेपुर, सराय मोहद्दी से बिशुनपुर, गौसपुर तिराहा से पट्टी नरेंद्रपुर, कुंवरपुर से मधुपुर, बक्सा से मधवा वाया लोहिंदा। पीडब्ल्यूडी को बहुत बार लिखा, लेकिन कोई इस पर अभी तक ध्यान दिया नहीं गया। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं जौनपुर जनता की सहूलियत के लिए कुछ पुलों की भी आपके माध्यम से मांग रख रहा हूं। जैसे कुंवरपुर से मधुपुर, बक्सा से मधवा वाया लोहिंदा, लाला बाजार से छबीलेपुर, सराय मोहद्दी से बिशुनपुर, गौसपुर तिराहा से पट्टी नरेंद्रपुर, गुरैनी से सोगर। यहाँ पर अगर पुल बन जाता है तो जनता की बहुत सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय कानून मंत्री का ध्यान देश में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किए जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी और अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसके साथ देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। माननीय महोदय, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। यहाँ यह भी
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कानून के समर्थक थे। हाल ही में दिल्ली एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की है। महोदय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सत्रहित है। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक भावनाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश को एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। धन्यवाद। श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी। श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रहराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवणे व त्याचबरोबर लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा ह्या दोन प्रमुख विषयाकडे मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, लिंगायत समाज हा 12व्या शतकातील संत महात्मा बसवेश्वर यांचा अनुयायी आहे। स्वातंत्र्यपूर्व या समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा होता अशी सरकार दप्तरी नोंद असल्याचंही समजते। त्याचबरोबर कर्नाटक नंतर महाराष्ट्रामध्ये लिंगायत समाजाची संख्या मोठी आहे। जवळपास 7% महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा लिंगायत समाज आहे। अनेक वर्षापासून हा समाज अल्पसंख्याकाच्या दर्जासाठी आवाज उठवतोय आणि अल्पसंख्याक म्हणून या समाज घटनात्मक सवलतीपासून वंचित आहे। या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देणं गरजेचं आहे। लिंगायत धर्म म्हणून सुद्धा मान्यता याला मिळाली आणि सांस्कृतिक आणि औद्योगिक विकासासाठी या समाजाला निश्चितपणे मदत होईल। तरी माझी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत योग्य ती पावलं उचलावीत। आणि अध्यक्ष महोदय, फक्त एक विषय आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याच्या बाबतीत त्या ठिकाणी जर आरक्षणाची मर्यादा केंद्र सरकारनं या ठिकाणी लोकसभेत कायदा करून 50% पेक्षा पुढे नेली तरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीतला निर्णय त्या ठिकाणी कोर्टाच्या ह्याच्यावर गुणवत्तेवर टिकू शकेल। त्याच्यामुळं आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी दुसरी विनंती महत्त्वाची आहे की 50%ची आरक्षणाची मर्यादा त्या ठिकाणी वाढवावी, जेणेकरून इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला त्या ठिकाणी आरक्षण मिळेल। या प्रमुख मागण्याकडे आपल्या माध्यमातून मी केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री सुनील कुमार मंडल जी। लिंगायत आणि मराठा আমি ট্যুরিজম মিনিস্টারকে উদ্দেশ্য করে বলছি যে আমার 38 বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বিরাট ট্যুরিজমের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এখানে কালনায় 108 মন্দির, কাটোয়ায় কবি, লেখক, মহাপুরুষ থেকে আরম্ভ করে অনেকেরই ওখানে জন্মস্থান আছে। গঙ্গা নদীর অববাহিকায় এটা অবস্থিত। আমার পূর্বস্থলী দাইহাট, এখানে আছে অনেক বড় বড় শিব মন্দির এবং পাশে আছে বিরাট পাখিরালয় এবং এখানে কাটোয়া থেকে কালনা পর্যন্ত যে গঙ্গার অববাহিকা আছে সেই অববাহিকায় প্রচুর ছোট ছোট কটেজ আছে এবং এগুলোকে যদি আমাদের ট্যুরিজম থেকে রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে আরও থাকবার জন্য বিশ্রামাগার তৈরি করে দেওয়া হয় তাহলে একটা এখানে বিরাট ট্যুরিজমের একটা সুন্দর জায়গা তৈরি হয়। আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ট্যুরিজম ক্ষেত্রে দেখেছি, তার থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমার এই এলাকায় 38 বর্ধমান পূর্ব লোকসভার অন্তর্গত কাটোয়া থেকে কালনা পর্যন্ত বিরাট ট্যুরিজমের একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দেওয়া যায় সাধারণ মানুষের জন্য। পাশেই নবদ্বীপ, যেখানে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান, সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে
হাজার হাজার বিদেশিরা এখানে প্রতি বছর আসে এবং তারাও এই জায়গার সুবর্ণ সুযোগ, এই ট্যুরিজমের সুবর্ণ সুযোগ তারা নিতে পারে। আমাদের এটা একটা বৃহত্তর ট্যুরিজম স্পট গঠন হতে পারে। তাই আমি মাননীয় ট্যুরিজম মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যে যাতে আমাদের এই ট্যুরিজম সেন্টারে জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুদান দেওয়া হয় এবং আমাদের এই ট্যুরিজমের জন্য আমরা সর্বতোভাবে কাগজপত্র ট্যুরিজম দপ্তরে পাঠিয়েছি। আশা করি আপনার মাধ্যম দিয়ে মাননীয় ট্যুরিজম মিনিস্টার আমাদের এই ট্যুরিজমের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা না করে আমাদের এই ট্যুরিজমের জন্য যে অর্থ প্রদান করা সেটা করবেন, এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। Chairman sir, I want to call your attention to the deserving but underappreciated group of business correspondents who primarily work with banks. These correspondents' powerful reach is essential to advancing our nation's financial inclusion objective at the local level. For the past 9 years, 732 committed VCs have been employed by the Odisha Gramya Bank in my state of Odisha. Instead of rewarding their efforts for their door-to-door service, the Financial Institution Department has issued a circular that will result in the withdrawal of their fixed compensation and a reduction of their commission to 1,500 to 1,700 as estimated. With this level of income, families will undoubtedly fall into the poverty trap because they are not even eligible for minimum wages. Additionally, the government of Odisha is considering implementing OLMBC, which will further ensure a sharp decline in their already meager incomes of BCs. Sir, these BCs have spent nearly 10 years going above and beyond in the performance of their duties. In order to provide the BCs the job stability they need is to live with dignity. I urge the Honorable Minister of Finance to take the required steps to restore the compensation paid to them. I also request the Honorable Minister to integrate this skilled workforce into the current framework of trained workforce. Thank you, sir. श्रीमती दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शून्यकाल पे आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के अथक प्रयासों से भारतीय रेल नई ऊंचाइयां छू रही है तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग से वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बना रही है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि कोरोना काल के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों के ठहराव बंद कर दिए गए थे और जिनका वर्णन मैं दे रही हूं और उनको पुनः शुरू किया जाए। ट्रेन नंबर 14813, 14814 का ठहराव गोटन, जालसू और खेड़ोली पर था। ट्रेन नंबर 14721, 14722, ट्रेन नंबर 19223, 19224, ट्रेन नंबर 19225, 19226 और ट्रेन नंबर 14887, 14888 का ठहराव गोटन पर। ट्रेन नंबर 19031, 19032 का ठहराव सेंधड़ा पर। इसके अलावा जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के मध्य संचालित होने वाली ट्रेन नंबर 22421, 22422 सालासर एक्सप्रेस का संचालन कोहरे के कारण 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक स्थगित कर दिया गया था। ये ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डेगाना और मेड़ता स्टेशन पर रुकती है। इन ट्रेनों के ठहराव बंद होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू करवाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और स्थानीय निवासी लगातार मांग कर रहे हैं। अतः मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस संबंध में पुनर्विचार करते हुए ट्रेन नंबर ये सारी ही ट्रेनों को पुनः इनका संचालन शुरू किया जाए। ये कोरोना काल में बंद हुई थी, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक ट्रेनें हैं और इनको दोबारा शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
श्री दानिश अली जी, श्री कनकमल कतारा जी, श्री विवेक नारायण शेजवालकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के डबरा और मोहना इन स्टेशनों पर रेलवे के स्टॉपेज के बारे में माननीय रेल मंत्री से निवेदन आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहना और डबरा स्टेशनों पर कोविड समय के पूर्व जिन ट्रेनों का ठहराव होता था वो ठहराव बंद कर दिया गया है। इन ट्रेनों का संचालन फिर से होने के बाद भी इनका मोहना रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दिया गया है। ये ट्रेनें इटावा कोटा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19812, ग्वालियर भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12198, ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11126, जिसके चलते इस अंचल के यात्रियों को इंदौर भोपाल सहित अनेकों स्थानों पर जाने के लिए ग्वालियर और शिवपुरी जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही परेशानी के चलते उपरोक्त ट्रेनों का स्टॉपेज मोहना स्टेशन पर पुनः करवाने का कष्ट करें। इसी तरह गोंडवाना एक्सप्रेस का संचालन कोविड काल के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु इसका ठहराव डबरा स्टेशन पर समाप्त कर दिया गया है। डबरा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली आवागमन के लिए यही एकमात्र महत्वपूर्ण ट्रेन है। मेरा अनुरोध है कि डबरा में गोंडवाना एक्सप्रेस का पुनः ठहराव किया जाए और लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी। मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, गांधी जी का सपना था कि मुल्क आजाद हो, खुशहाली हो, खेतों में पानी हो। महोदय, मैं बिहार से आता हूं, अररिया से। 15 महीना हो गया है पंचायती राज चुनाव का, और 15 महीना बीतने के बाद वहां की जो कुव्यवस्था है, जो वहां की सरकारें हैं, अभी तक पूरे किसी का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। 7 निश्चय का जो योजना है और मनरेगा का योजना, जो हमारे पंचायती राज के मुखिया और वार्ड सदस्य महोदय, उनको मानदेय तक का खाता नहीं खुला है। और पूरे बिहार के लाखों पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वार्ड सदस्य, वह आंदोलन कर रहा है और उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उनको अधिकार से वंचित रखा गया है और गांव में वार्डों का काम, पंचायतों का काम विकास से वंचित है। और मनरेगा में जो लूट हो रहा है, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। मैं भारत सरकार के, आपके माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि मनरेगा योजना का जांच करवाया जाए और पंचायती राज में जो प्रतिनिधि, मुखिया और वार्ड सदस्य जीत के आए हैं, उनको चुनाव से पहले बहुत वादे किए गए थे और वो वादा पूरा नहीं हुआ है। पूरे बिहार में सभी वार्ड सदस्य, लाखों वार्ड सदस्य जो जीत के आया है, वो आंदोलन कर रहा है, विकास बाधित है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में बात को देना चाहता हूं। इस तरह हस्तक्षेप करके विकास का काम को चलवाया जाए और जनप्रतिनिधियों को उचित अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। श्री रविंद्र कुशवाहा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपको प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के सिकंदरपुर विधानसभा में 106 एकड़ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर है, यह पूर्वांचल में खेल ग्राउंड के रूप में सबसे बड़ा मैदान है, जो सिकंदरपुर तहसील बलिया के पूर्व ग्राम में स्थित है, जहां राज्य सरकार के द्वारा बाउंड्री वाल का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। महोदय, आज पूरे देश में खेलो इंडिया के अंतर्गत गांव देहात, छोटे शहरों में स्पोर्ट्स कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश के गांव देहात में निकलकर युवा खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। महोदय, खेलों में गांव के युवा खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को देश के लिए खेलने का मौका मिले, इसके लिए उपरोक्त भूमि पर खेलो इंडिया के अंतर्गत सिंथेटिक एथलेटिक्स
ट्रैक, बहुउद्देशीय हाल, तरणताल, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड आदि का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के सिकंदरपुर तहसील के अंतर्गत चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज पूर्व बलिया में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आधुनिक खेल संसाधनों से विकसित करने की कृपा करें, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश की युवा शक्ति को खेलों की ओर उन्मुख कर उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया जा सके, ताकि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। श्रीमती चिंता अनुराधा। थैंक यू सर। सर, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एपी दिशा विधेयक 2019 को पारित किया है। उपरोक्त ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के 14 दिनों के भीतर परिरक्षण करना है। विधेयक ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने 18 ISO प्रमाणित दिशा महिला पुलिस स्टेशनों के संदर्भ में एक सक्षम ढांचे की स्थापना के लिए सक्रिय कार्रवाई की है। पीड़ितों के मनोसामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 700 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, 13 वन स्टॉप सेंटर, 12 नामित महिला अदालतों और 9 विशेष पोक्सो अदालतें की स्थापना की है। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 2 IAS और IPS अधिकारी विशेष रूप से तैनात है। दिशा ऐप संकट के महिलाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के व्यापक रूप से 19.83 लाख डाउनलोड के साथ उपयोग किया गया है। चूंकि आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया और प्रशासन संवर्ती सूची में विषय है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप राष्ट्रपति के विचार और सहमति के अधीन है। मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जिससे इसे आगे के परामर्श के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। चूंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने सिफारिशों के साथ वापस आ गया है, इसलिए मैं गृह मंत्री से आंध्र प्रदेश में एक मजबूत और प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए मामले में तेजी लाने का आग्रह करती हूं। थैंक यू सर। श्री वाइदलिंगम जी। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, புதுவை மாநிலத்திலே கடலோர பகுதியிலே மீனவர்களுடைய கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கடல் அரிப்பினுடைய காரணமாக நகரப்பகுதியும் கிராம பகுதியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் காரைப்பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக வந்த அந்த மாண்டஸ் என்ற புயலின் காரணமாக அந்த புதுவையினுடைய வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிள்ளைச்சாவடி, சின்ன காலாப்பட், பெரிய காலாப்பட் அண்ட் கணபதி செட்டிக்குளம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பாதிப்பு எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், அந்த மீனவர்களுடைய மொத்தமான உரிமைகளையும் அந்த கடல் அரித்து சென்றிருக்கின்றது. படகுகள் அடித்து சென்றிருக்கின்றன. அதுவும் குறிப்பாக வீடுகள் எல்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட நிலையை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். அந்த பாதுகாப்பு நீண்டகால அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். அந்த கடல் அரிப்பை தடுப்பதற்கு உண்டான நடவடிக்கையை மத்திய அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Thank you. Shri Thomas Chalikadandi. Sir, through this submission, I wish to bring to the notice of the Honorable Minister for Civil Aviation the plight of the domestic air passengers from various airports in India, including Delhi to various airports in Kerala. Sir, the air tickets to various cities in Kerala from domestic airports, including Delhi, have become very costly. The airline companies are exploiting the situation. The domestic tickets have become a costly affair
and it has gone up to 25,000 rupees now. Not just that, tickets are also not available to various routes. Because of the special circumstances, even if the tickets are taken months back, the charges are 3 to 4 times from the normal rate. Full fare is being charged even on the children. The airports are jam-packed with its passengers. Train tickets are also not available. Hence, a lot of people, including students, prefer to travel by air. Hence, even the students have resorted for air travel. Malayalam Manorama, the most circulated Malayalam paper, is writing about this plight of the passengers for the last 3 days. Sir, I would request the Honourable Minister to intervene in this matter and give directions to the airline companies not to exploit the passengers like this, especially now it is the festive season. People from all over India are coming to Kerala for celebrating the Christmas. So it is to be done. Something has to be done. I would like, I heard that day for yesterday, the Honourable Minister himself went to Delhi airport to see the situation personally. Sir, it's a very great difficulty situation, and I would request the Honourable Minister to intervene in this matter and give directions to the airline companies to start more services and also reduce the fare to a reasonable rate. Dr. Dal Singh Bisan ji. धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय पर पूरे देश में धान की फसल के बाद में धान की कटाई में मजदूरों की बहुत दिक्कत आ रही है और इसके कारण से मजदूर नहीं मिलने से किसानों को हार्वेस्टिंग कराना पड़ता है। तो हार्वेस्टर के कारण से हार्वेस्टर की कटाई होने से उसमें बहुत सारा हमारा जो मटेरियल है वो धान का सब रह जाता है, जिसको हम पराली कहते हैं, और जिसके कारण से किसान को लगता है कि उसको उसकी फसल की अगली तैयारी करने के लिए उसको जलाना बड़ा सरल साधन लगता है और इसके कारण से वो पूरे पराली को जलाता है, जिसके कारण से पूरा मृदा हमारी खराब होती है, पर्यावरण खराब होता है। और आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली के आसपास कितना घना कोहरा जैसा वातावरण बनता है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हार्वेस्टिंग करने वाले जो किसान हैं उनको ये चाहिए कि वो, और जो हार्वेस्टर करने वाले जो मशीन के ओनर हैं, वो हार्वेस्टिंग के समय पर बंडलिंग और भूसा बनाने का काम दोनों करें, चाहे गेहूं का हो चाहे धान का हो। तो उसके कारण से जो अवशेष जलाने का काम होता है वो बंद हो जाएगा और एक तरह से जहां पर हमको एक जैविक खाद बनाने के लिए भूसा मिलेगा या जानवरों के लिए, हमको पशुओं के लिए भूसे की जहां उपलब्धता होगी। और तीसरा जो लाभ है कि यदि उसको विक्रय करना होगा किसान को या हार्वेस्टर करने वाले उस हार्वेस्टिंग मशीन के मालिक को, तो वो उसको बेच करके भी, इथेनॉल वगैरह बनाने में उसको बेच करके भी उसको राशि कर सकता है। और इसके साथ ही साथ चूंकि हार्वेस्टर की मात्रा इसमें बहुत बढ़ रही है, किसान बहुत ज़्यादा हार्वेस्टर लेना चाहते हैं पर उनको उतनी संख्या में उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, सरकार उतने प्रकरण उनको बना के दे नहीं रही है। तो हर एक राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टर खरीदे जाने के लिए सब्सिडी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रकरण बने ताकि ये भूसा जलाने या पराली जलाने के काम बंद हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और एक हमारी मृदा भी जैविक बन सके। यह ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपना इस विषय को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय सेठ जी। झारखंड हमेशा गौ तस्करों के निशाने पर रहा है। इधर हाल के वर्षों में गौ तस्करों के हौसले परवान चढ़े हैं। इनके हौसले इस कदर बढ़ गए कि कुछ माह पूर्व एक महिला दरोगा संध्या टोपो को कुचलकर हत्या कर दी गई। गौ तस्कर एक बड़ा सिंडिकेट है जो देश भर में काम नहीं कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपराध बन चुका है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। और अभी हाल के 5-6 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया कि पशु तस्करों पर अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस जो तस्कर होते हैं, जो जानवर ले जाते हैं, उसको रोकेगी नहीं। यह गौ तस्करों का मनोबल और हौसला बढ़ाने वाला आदेश है। सभापति महोदय, हम गाय को पूछते हैं, गाय हमारी मां है। ये कोई धार्मिक आधार तो है ही है बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारी हर धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक आधार होता है।
यही वजह है कि हम गाय को मां पुकारते हैं। दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण में आंख में डूबी है झारखंड की यूपीए की सरकार गाय की तस्करी करने वालों के हौसले बढ़ाने का काम कर रही है। अब झारखंड के गौ तस्कर गाय को पश्चिम बंगाल संथाल के रास्ते बांग्लादेश भेज रहे हैं। हाल ही में प्रतिबंधित पीएफआई का भी समर्थन गौ तस्करों को रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि गौ तस्कर को राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए और इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। यदि हमने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए, भगवान कृष्ण के देश में गौ संकट में होंगे और हमारी पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का जो आदेश है कि आप पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, सदन इसकी भर्त्सना करे। थैंक यू। श्री कनकमाल कतारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकालांश में अपने बात रखने का मौका दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर लाखों की आबादी निवास करती है, जिनमें से अधिकतर परिवारों के पास खुद का अपना घर तक नहीं है या फिर वह कच्चे टूटे फूटे घर में ही अपना गुजारा बसर करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना संचालित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा और गरीब आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए हैं। किंतु राजस्थान सरकार की लापरवाही व ऑनलाइन पोर्टल के बंद होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता रखने वाले बहुत से परिवार अभी भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और योजना से वंचित हैं। इस बीच राज्य सरकार द्वारा 2 बार ऑफलाइन आवेदन किए थे, परंतु उनका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। अगर इसी तरह धीमी गति से यह कार्य चलता रहा तो 2024 तक के लिए जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखे गए थे वह हासिल नहीं हो पाएंगे। मेरा सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में राजस्थान सरकार को प्रधानमंत्री जी आवास योजना के कार्य में तेजी लाने व पोर्टल को दोबारा शुरू करके निर्देश दिए जाएं, जिससे पात्रता रखने वाले गरीब परिवारों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध हो सकेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। सर, आपकी जानकारी में, देश की जानकारी में है कि किस तरीके से लगातार देश के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए मैं किसी भी राज्य का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उन्नाव रहा हो, हाथरस रहा हो या उत्तराखंड में अभी एक घटना हुई सबके सामने है रिजॉर्ट के अंदर, वो चली गई, या कठुआ का मामला हो या गुजरात का बिल्किस बानो की बच्ची के साथ रेप का मामला हो। सर, ऐसे जो अपराध करने वाले हैं उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह यह है क्योंकि उनको सही सजा नहीं होती और किसी केस में अगर सजा हो भी जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रिमिशन पॉलिसी के तहत जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है उनको पहले छोड़ देती हैं। जैसा अभी पिछले दिनों गुजरात के अंदर का मामला आया जो पूरी दुनिया में वो केस हाईलाइटेड था, बिल्किस बानो की बच्ची के साथ रेप के साथ मर्डर हुआ, बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, लेकिन उन अपराधियों को ये कह करके छोड़ दिया गया कि साहब इनका आचरण बहुत अच्छा था और उनका स्वागत किया गया बाकायदे जब वो जेल से निकले। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि केंद्र सरकार जो है ये निर्देश दे, रेलवे थैंक यू, योर पॉइंट वाज मेड। थैंक यू सर। बोलिए। मेरी मांग क्या है? प्लीज अलाउ 10 सेकंड। तो सर, मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसा जो कानून में जो प्रावधान है जो रिमिशन का दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट वो विड्रॉ करे और honorable members, please confine your point to within 1 minute. 2 minutes. This 1 minute is the time.
Thank you, sir. Yesterday night around 7 p.m., Telangana police entered into the Telangana Congress war room in Hyderabad. Shame. In this office, around 300 volunteers, professionals work to promote liberal ideas and to work towards a Telangana for all. Under the direct instruction from the Telangana's IT minister, who is acting as the chief minister also, entered into the Congress office and misbehaved with the women volunteers and broke the gates and smashed the television sets and cameras. Around 250 policemen took 50 computers and broke the server room and took the hard disk which had the valuable data and took 5 of our IIM and IIT passed out professionals late night. And hearing the news, Congress senior leaders Shabbir Ali and Mallu Ravi and Eravali Anil came and they were also arrested and manhandled. Shame. There is no notice, there is no search warrant. Under 41 ACRPC, it is completely violation of the Supreme Court judgment Dr. of Shafiqur BK Rahman. Vasu. 1 minute, sir, 1 minute, sir. I'm finishing it. BK Vasu. Please. We are hearing it's for one Facebook post. And through you, sir, I like to request Honorable Home Minister to ask for a report from the Honorable Governor. सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आइंदा अकलती तबके को न दी जाए। इससे मुस्लिम तबके के तलबा को बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो आला तालीम में बहुत पीछे रह जाएंगे। चूँकि देश में मुस्लिम गरीब और बेरोजगार ज़्यादा है, वो कैसे इस कमी को पूरा करेगा? जबकि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप यूपीए गवर्नमेंट ने सचर कमेटी के फैसले के मुताबिक लागू की थी ताकि अक़ल्लती तबके के तलबा आला तालीम हासिल कर सकें और तालीम के मैदान में वो आगे बढ़ सकें। आज पूरे देश में अक़ल्लती तबके के तलबा हंगामा कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस हुक्म को फौरन वापस ले, वरना हम अपने हक वापस करने के लिए हर कुर्बानी देंगे। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है और प्लीज सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उड़ीसा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर में खनिज खनन क्षेत्र में हो रही व्यापक अनियमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। 2 मिनट का समय चाहिए। ओडिशा राज्य में आर्थिक वर्ष 2020-21 में बहुत सारे आयरन ओर माइंस नीलाम किए गए। बहुत आश्चर्य की बात है कि तुरंत आर्थिक वर्ष 21-22 से नए नीलामधारियों ने खनन किए गए आयरन ओर में लो ग्रेड आयरन ओर का बहुत ज्यादा उत्पादन दिखाना शुरू किया। एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम जानते हैं कि 55% फेरस कंटेंट वाले आयरन ओर को हम उससे कम वाले आयरन ओर को हम लो ग्रेड आयरन ओर बोलते हैं। आर्थिक वर्ष 2019-20 में माइन नीलाम होने से पहले लो ग्रेड आयरन ओर का प्रतिशत सिर्फ 0.9% था, 0.9% था। आश्चर्य की बात है कि नीलाम के बाद आर्थिक वर्ष 21-22 में यह बढ़कर 0.9% से बढ़कर 27.3% हो गया। अप्रैल और मई 2022 में यह प्रतिशत 42.3% और 58.9% हो गया। जो माइंस 30-40 वर्षों से हाई ग्रेड आयरन ओर देते थे, वो अचानक नीलाम के बाद लो ग्रेड कैसे हो गए? Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, Duggarajapatnam, Ravagantapalem, Nidugurti, Pudiraidaru, Mola Padava, this Panchayat of Wakad Mandal, and Burdagali Kottapalem, Elluru, Kumarapalem, Panchayat of Chittamur Mandal. Sir, these are under eco-sensitive zone, sir, in Pulicat Lake. These villages face several challenges in their existence, majorly due to poor road connectivity, which distance them for development areas, sir. Sir, please, I request you through you, sir, Honorable Minister of Environment and Forest and Climate Change, initiate necessary action to laying permanent road connectivity for the villages, sir. Thank you, sir.
तीरथ सिंह रावत जी। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने विशेष विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में सदन एवं सरकार का ध्यान अवगत कराना चाहता हूं। उत्तराखंड प्रदेश देवों की भूमि है। यहाँ के लोग सरल एवं आस्थावादी हैं। यहाँ की रमणीकता एवं सौंदर्यता किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर तीर्थ स्थलों के साथ साथ पर्यटन स्थल भी हैं। जिस प्रकार प्रदेश की सौंदर्यता है, उसी प्रकार यहाँ की लोक भाषाएं भी सुंदर एवं लोकप्रिय हैं। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों की वहाँ प्रचलित लोक भाषा जैसे पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के में सम्मिलित किया गया है, उसी प्रकार उत्तराखंड प्रदेश की तीनों लोक भाषाओं को गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जो। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1967 तक जब जब चीन के साथ तनाव बढ़ा, इस सदन में भारत चीन रिश्तों को लेकर हर बार बहुत व्यापक बहस हुई। 1962 में जब चीन का युद्ध चल रहा था, तो इसी सदन में 8 नवंबर 1962 से 15 नवंबर 1962 तक बहुत व्यापक बहस हुई। 165 सदस्यों ने उस बहस में भाग लिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभापति महोदय कि सितंबर 2020 से लेकर ये 6ठा सत्र है संसद का, और एक बार भी चीन के ऊपर और भारत चीन रिश्तों के ऊपर जो हमारे सरहद पे ऊपर परिस्थिति है, उसके ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई। कोई सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। परिस्थितियां संवेदनशील है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि परिस्थिति क्या है। धन्यवाद सर, আমাকে सदन में भारत चीन रिश्तों के ऊपर ধন্যবাদ স্যার আমাকে বাংলায় বলার জন্য অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমি আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির জন্য রেলমন্ত্রীকে কিছু আবেদন করতে চাই, যেটা আগেও অনেকবার করেছি। এক সাঁইথিয়া জাংশনে নতুন রেল ওভারব্রিজের জন্য সিউড়ি ওভারব্রিজে এখনও কাজ শুরু হয়েছে 2019 সালে, এখনও নানাভাবে বারবার বন্ধ হচ্ছে, কারণ জানতে চাই এবং এটা শুরু হোক, এটা চাই। কোভিডের সময় কিছু ট্রেন বন্ধ হয়েছিল, যেগুলো আবেদন আবার নতুন করে চালু করা হোক, যেমন সিউড়ি হাওড়া এক্সপ্রেস, বর্ধমান মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার, হাওড়া রাজগীর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, শিয়ালদা বারাণসী এক্সপ্রেস, এবং ডবল লাইন চালু হয়েছে এবং ইলেকট্রিফিকেশন চালু হয়েছে। যদি আসানসোল ডিভিশনে অন্ডাল বর্ধমান একটা মেমো ট্রেন চালু করা যায় সাঁইথিয়া, তাহলে ভালো। सभापति जी धन्यवाद तुहाडा। मैं आज अपने पार्लीमेंट श्री फतेहगढ़ साहब ਜਿਹੜੇ रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की जरूरत है वो दसना चाहना कि तीन जगह दोराहा जेड़ा रोपड़ और लुधियाना हाईवे ते आ, और बसी पठाना टाउन 4 जगह डिवाइड हो रहा, और मेरा एक टंडारी कला जगह हैगी टंडारी खुर्द ओ डिवाइड हो रहा। मैं रेलवे मिनिस्टर साहब बैठे है, ये बेनती करना चाहना कि इनू पंजाब सरकार को कोई पैसा नहीं है, रेलवे लवे जहां गडकरी साहब ने इत्थे कहा थी। What is your demand? Please put forward सर, your मैं demand. ये कहना चाहना केंद्र सरकार ये ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बना के देवे, एक स्टेट गवर्नमेंट नू ना को। राजीव प्रताप रूडी जी। थैंक यू सर। Honorable members, please confine to your demand. Don't make it uncomfortable. सर, हम लोगों ने भारत और दुनिया में पर्यटन देखा, लेकिन मौत का पर्यटन नहीं देखा, जो हमारे क्षेत्र में कल से शुरू होने वाला है। और ये मौत पर इसलिए होता है कि आपने सुना होगा कि मैं बिहार से हूं सर, और मैं बिहार में छपड़ा से हूं। बिहार में सर शराबबंदी है, शराबबंदी से हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराबबंदी के कारण अगर मौत होती है और अवैध व्यापार होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और नीतिगत सरकारें निर्णय लेती है। लेकिन आज कल शाम से लोग अभी वर्ल्ड कप का स्कोर देखते हैं, और कल शाम से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कोर देख रहा हूं कि कितने लोग मरे हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, और अभी सैकड़ों लोग मौत से जूझ रहे हैं, जिनकी आंख की रोशनी जा रही है। आखिर ये कहां का न्याय है? और मरने वाले सब बिहार में, छपड़ा के वो गरीब हैं,
हमारे मित्र वहां बैठे हुए हैं, सिग्रीवाल साहब, हम दोनों का क्षेत्र एक है। आखिर इस देश के गरीब यस सर, मेरा मांग क्या है? मांग तो मौत का सर, पूरे बिहार में मौत का ये माहौल है सर। और मांग क्या करना है साहब? मौत, आप शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी है, एक मौत नहीं होता है क्योंकि वहां नीति सरकार की नीति ठीक है, और हमारे यहाँ मौत है सर। थैंक यू चेयरमैन सर। एक सभापति महोदय, सेग्रीवाल जी के एसोसिएट जी, सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय, सभापति ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, sir, to increasing the incidence of cancer cases, approximately 35 lakh of cases in the country, addition 13.5 lakh new cases each year, and 7 lakh patients die due to the cancer each year. Government should ensure effective implementation of national program for prevention of control and cancer care under hub and spoke model. Government must make efforts for accessible of affordable cancer treatment. Government must allocate adequate fund to Cancer Institute, RCC Adyar in Chennai, to transform the institute with world-class infrastructure. Thank you. There are government fund dues, central government fund dues for the state government till 31st July 2022 is rupees 1,968.44 crores. Sir, on the ground of Manrega, 6,561, PMOI, PMGSY, Samagra Shiksha Mission, midday meal, Swachh Bharat Mission, exchange of enclaves, BRGA, food subsidy, Ghatal Master Plan, funds for Bulbul Cyclone, dues for Ampan Super Cyclone, SDF Cyclone. Our Honorable Chief Ministers have written number of letters to the Honorable Prime Minister. Sir, through you, I will request the Honorable Prime Minister to look into the matters and go and deals with the letters written by the Honorable Chief Ministers and release the due funds of 1,968.44 crores immediately. Thank you. Sir, thank you, sir. Sir, Jallikattu is the ancient bull taming sport in Tamil Nadu. The most prominent events of which are conducted in Alanganallur, Avaniyapuram, Palamedu, Ayambatti, and Palavaranpatti in my Theni parliamentary constituency. The ancient Jallikattu festival was banned due to the reason action taken by the last UPA government. Huge protest also happens in Chennai. It again happens only with the support of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, with the initiative steps taken by the former Chief Minister of Tamil Nadu through Panis. सभापति महोदय, मैं जस्ट पुट योर डिमांड। एक सेकंड करा दो, जल्दी करो ना। बेनीवाल जी, जल्दी बोल दो यार बाप। रविंदर जी, सभापति महोदय, मैं दिखूंगा जो बोलूंगा ना। श्री सभापति महोदय, मैं पूरे देश का सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। जोधपुर के अंदर 6 दिन पहले शेरगढ़ क्षेत्र के बूंगरा गांव में राजपूत समाज के एक ही परिवार में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से वे हादसे की तरफ वहां करीब 24 मौतें हो गई और सभापति महोदय 29 लोग भर्ती है, जिनमें से 18 लोग आईसीयू के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और 2-2 लाख की घोषणा करते हैं और वहां से एक मिनट आपका डिमांड मिनट, वहां से जो मंत्री आते हैं आपका डिमांड दिल्ली के अंदर, वो वहां जाते हैं। 1 मिनट साहब, बात तो पूरी करना दे मेरी। 1 सेकंड, बात तो पूरी करना दे। मैं तो बोली आधा मिनट भी नहीं लिया। मेरा निवेदन है सर कि उन परिवारों को आर्थिक पैकेज दे। मंत्री वहां घोषणा करके आए थे, जो कैबिनेट मंत्री है, हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे। पूरा देश उस परिवार के साथ है। हृदय विदारक घटना है, आर्थिक पैकेज की घोषणा। धन्यवाद चेयरमैन साहब। किसान देश का अन्नदाता है और पिछले अरसे विच बड़ा लंबा समा देश के किसानों ने दिल्ली की सरहद से मोर्चा लगाया, जिस विच संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब 33 जथेबंदियां दे नाल कराया। पर
11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, UPA ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। Respected sir, in second week of October 2022 visit of 3 days of to Chandrapur tour, Honorable Petroleum Minister Sri Hardeep Singh Ji Puri announced refinery for Chandrapur. This is welcome steps, and this also gives opportunity for at least 30,000 employment and opportunities for at least establishment of 2,000 MSME industries in my constituency. श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सोलापुर में महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि हिंदू संस्कृति पे वो दाग लगाने जैसा है। एक व्यक्ति ने, एक यंगस्टर ने दो महिलाओं के साथ एक ही मंडप में शादी की है। IPC की धारा 494 है, धारा 495 है, पर ऐसी कोई नियम कायदा बना नहीं है कि एक ही मंडप में एक ही व्यक्ति दो महिलाओं के साथ शादी कर ले। इसके लिए कोई ना कोई नियम कायदा बनाना चाहिए और जिन्होंने किए उन्हें दंडित करना चाहिए कि आगे आने वाली संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का हमारे युवाओं को इसके माध्यम से लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, पेपर सब जगह ये वायरल हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति को ऐसा धक्का नहीं लगना चाहिए। बिहार में शराब के वजह से सैकड़ों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। आज का यह दुखद समाचार मैं आपके माध्यम से पूरे देश और सदन को बताना चाहता हूं कि आज ये सारण जिला में और मेरे लोकसभा क्षेत्र के मसरक प्रखंड में दर्जनों लोग, अभी गिनती के 35 तो वहां से आ रहे हैं, पूरा सूचना अभी लेकर मैंने अपडेट लिया है, 35 लोग मर चुके हैं, दर्जनों लोग अस्पताल में। सभापति महोदय, मेरा डिमांड है सभापति महोदय कि वहां के SP को तुरंत मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, इस वक्त जो थैंक यू रविकिशन जी। भैया सभापति महोदय, आज एक सबसे बड़ी एक चिंता जो इस वक्त है पूरे भारत में, मेरे कई मित्र जो अचानक जिम में वर्कआउट करते हुए एक्सरसाइज, भैया आपका जा नहीं रहा 2 मिनट रुक जा हमारे बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके लिए आज पूरा देश चिंतित है। मेरे बहुत सारे मित्रों की डेथ हो गई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, मेरे कलाकार दोस्त हैं, यंग एज अंडर 30। तो मैं महोदय, मैं आपके द्वारा मैं के जानना चाहता हूं कि एक ऐसी स्वास्थ्य मंत्रालय, एक जांच दल गठित हो कि व्हाई द यंगर डेथ्स आर हैपनिंग, और ये जिम ट्रेनर हैं, ये किस प्रकार का प्रोटीन रेकमेंड कर रहे हैं, एंड क्या वो इनलीगल प्रोटीन है, ये बहुत जरूरी विषय है। ये डेथ अचानक जो यंग हमारे सभापति महोदय, ये संविधान में 2 आर्टिकल है सर, 341 और 342। अभी सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बड़ी चर्चा चल रही है और केंद्र सरकार ने यह कहा कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, खासकर मुसलमान में और क्रिश्चियन में, हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, केवल जैन, सिख और बौद्ध को छोड़कर। 342 भी मोर और लेस वही धारा है और उसी के आधार पर हम शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देते हैं या सुविधा देते हैं। लेकिन लोग पढ़ाई के नाम पर, लोग शिक्षा के नाम पर, या लोग उनके स्वास्थ्य के नाम पर, या लोग उनको बरगला के धर्मांतरित कर रहे हैं। और मेरे इलाके झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और नॉर्थ ईस्ट में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि 341 और 342 एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसी कीमत पर धर्मांतरित होने वाले शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे, उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में ये लागू होना चाहिए। जो धर्मांतरित होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रम्या हरिदास जी। Thank you, sir. I point out here an important matter. Compensation for the victim in atrocities against SC/ST in Kerala is pending. Several victims face different problems and challenges and waiting for this compensation to survive. But the delay is leading them to stress and hopelessness in future. Sir, the state government has not disbursed compensation to victims in atrocities against SC since 2021.
Even in Palakkad district, 50 lakhs Shri spending Francis to Sardinadu. distribute. Sir, different project and programs. Sri Francis Sardinadu. Sir, in my Just, constituency, just your demand, please. Please, please, we are exceeding the time. Just start. in my constituency, one road is being built, NH17. It is just by the side of the commercial capital of Goa. It is going from Kolba, Sternamati to Varka. Sir, Goa is a heavy rainfall area. We get on an average 130 You're not inches of rain. putting your demand. Please put your demand. So they are trying to build it with big pipes. The request of the people are protesting, they want on stilts. So please, I convey Dr. Amol to Koleji. the ministry that it is to be on stilts. Thank you, Speaker, sir. The crops will be destroyed. सर, एक बहुत ही अहम मुद्दा मेरे चुनाव क्षेत्र से निगड़ित है और वो है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे। और आजादी के बाद रोड नेटवर्क में 16 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन रेल नेटवर्क में 2 गुना भी इजाफा नहीं हुआ। और माननीय रेल मंत्री जी का जो निरंतर प्रयास है उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में रेल मंत्रालय से इन प्रिंसिपल मंजूरी जून 2020 में मिली थी और 28 अप्रैल को रेल मंत्रालय की तकनीकी और नीति नियोग और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिली है और ये परियोजना की पूरी तैयारी हो गई है। सिर्फ CCEA के लिए पिछले 6 महीने से ये प्रोजेक्ट का DPR प्रेजेंट होना बाकी है। और मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि इसकी जो जोनल रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, जो जोनल रेलवे के 3 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से पेंडिंग है, इसलिए सर पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे को जल्द से जल्द CCEA के सामने रखा जाए। meet again at 2:10 p.m. Thank you.